Okay, so a very good evening to all of you. So today's session will be a special session, okay? Because from where we have left yesterday's last session was still NABARD bankable model project. So I have taken today some of the question, which will be a surprise for you and also a test check for all of you. I can see you can answer it properly or not, rightly or not, right? So we'll be discussing some sets of 15 questions today, and I expect that you should answer these questions, okay, in a right way, because this may be important because these were in the news. So let's start today's discussion. Yeah, the first question in front of you is, you can see this. Which of the following is not correct with respect to Pesticide Management Bill 2020? Which of the following is not correct with respect to Pesticide Management Bill 2020? पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, दैट विल सी लेटर ऑन, ओके? अभी जो है वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. होता है तो नॉट एन इश्यू. Which of the following is not correct with respect to Pesticide Management Bill 2020? Rahul is saying E, okay. Shubham is saying all. Pulkit is saying C. Rishabh is saying D. Sherlock, all. Vinit is saying B, creation, okay. Shiva is saying all. Himanshu is saying B. Shivangi B, okay. Radha is also saying D. Shivangi D. See, because देखेंगे आप ये पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल जो है दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले certain few days back also there was news related to banning of some of the pesticides by the Ministry of Agriculture, right? So because of that context also this bill becomes important. So the PMB bill 2020 में से इनमें से जो right answer होगा that will be first. अगर हम option देखें, we look into the first option, a digital database of pesticide. Yes, this is the most important point. एक डिजिटल डेटाबेस हमें बनाना है, ठीक है, पेस्टिसाइड एक्ट के हिसाब से, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से फॉर्मुलेशंस हम यूज करते हैं, व्हाट आर द फॉर्मुलेशन वी आर यूजिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट पेस्टिसाइड्स. सो ए डेटाबेस इज मस्ट रिक्वायर्ड इन दिस डिजिटल वर्ल्ड. क्रिएशन ऑफ ए स्टेट फंड फॉर कंपनसेशन. तो अगर आप पढ़ोगे इसके क्लॉज को, बिल के जो ड्राफ्ट बिल था, ड्राफ्ट बिल से, बिकॉज NABARD asked many of the questions from draft bill also. If you have seen previous year also, they have asked some of the questions from draft bills. Since this draft bill is related to your agriculture part, they may ask some of the question from it. So that's why I have taken some of the conceptual questions so that there is a clarity in your mind regarding this PMB bill 2020. So the creation of state fund, ठीक है, you see that what is here is fund for state. This is a central bill, so center will have the fund for this. Center cannot say for state, okay, because it is a central bill, so central will only create a fund. So the option number B here is wrong, because it says that creation of state fund. But as per this bill, there will be a creation of what? Central fund. प्रमोट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड. अभी हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, अभी हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट सही होगा, प्रमोट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ठीक है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को ये प्रमोट करेगा, ये तो ऑप्शन सही होगा. रेगुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी अगर हम बिल ला रहे हैं पेस्टिसाइड को रेगुलेट करने के लिए लाते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही होगा. सो इसमें से क्या हो जाएगा, सारे आपके सही है, बट कौन सा गलत है यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिएशन ऑफ स्टेट फंड. स्टेट फंड नहीं क्रिएट करना, हमें कौन सा फंड क्रिएट करना, हमें क्रिएट करना सेंट्रल फंड. Which of the following is wrong with respect to spurious pesticide? Spurious pesticide से इनमें से कौन wrong है? Bharat is saying E, okay. Ask is saying D. Tej is saying E. Shubham is saying E, okay. Rahul C.
सी देखिए स्प्यूरियस पेस्टिसाइड जो है वो मेन थीम है पूरे बिल देखोगे, अगर आप पेस्टिसाइड पीएमबी बिल 2020 को देखोगे तो स्प्यूरियस पेस्टिसाइड ही इसका थीम है। स्प्यूरियस पेस्टिसाइड्स आप समझते हैं क्या? एनीबॉडी कमेंट व्हाट डू यू मीन बाय स्प्यूरियस पेस्टिसाइड? व्हाट डू यू मीन बाय स्प्यूरियस पेस्टिसाइड? क्या समझते हैं? एक वर्ड में कैसा डिफाइन करेंगे इस पेस्टिसाइड को आप? हाउ यू विल यू डिफाइन? फेक, यस कुमेर। अनसर्टिफाइड, यस, दीज आर ऑल द राइट। तो जो भी फेक होगा, जो भी अनसर्टिफाइड होगा, ठीक है, वो हार्मफुल होगा क्रॉप के लिए, ऑब्वियस है, वो हार्मफुल होगा सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी, वो लॉस ऑफ रेवेन्यू भी होगा गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज वो फेक पेस्टिसाइड्स होंगे तो अगर कुछ डैमेज होता है, ठीक है, तो एक लॉस ऑफ रेवेन्यू भी होगा फार्मर के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी क्रिएट करेगा अगर सॉइल की फर्टिलिटी को ये डैमेज कर रहा है। तो इनमें से ये सारे फीचर्स है स्पीरियस फर्टिलाइजर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल, नन की जगह यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई ऑल होना चाहिए था, ठीक है, कि ऑल ऑफ द फीचर्स क्या है यहाँ पे रिलेटेड टू योर स्पीरियस पेस्टिसाइड्स ही है, ठीक है। डुप्लीकेट, यू कैन से डुप्लीकेट आल्सो, राइट, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स जो दिए गए हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करेगा ही, ठीक है, बैलेंस थोड़ी करेगा प्रसाद, इट विल डू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। Coming on to Central Insecticide Board works under which ministry? Central Insecticide Board comes under which ministry? पहला Ministry of Agriculture, second is your Ministry of Commerce and Industries, next is Ministry of Chemical and Fertilizer, next is Ministry of Rural Development. Ministry of Chemical Fertilizer, Ministry of Commerce and Industry, B and C, जो full form बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। Ask is saying C, Shubham is saying Ministry of Agriculture, Anand is saying Agriculture, Rohini is saying C, Ministry of Chemical and Fertilizers, Kumer is saying Chemical and Fertilizers, Ashok is saying also C, that is Chemical and Fertilizers, right. Deepa is saying C. See, the right answer for this question will be your, that is Ministry of Agriculture only. यहाँ पे इंसेक्टिसाइड देख के आपको केमिकल और फर्टिलाइजर से कंफ्यूज नहीं होना है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, ताकि एग्जामिनेशन में दे डू आस्क सच क्वेश्चन यू डोंट कंफ्यूज दैट दिस सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड वर्क्स ओनली अंडर द परव्यू ऑफ योर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ओनली, केमिकल फर्टिलाइजर इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। तो अगर हम बात करें और कुछ बात कर लेते हैं इस पीएमबी के बारे में, जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल जो आया था, दिस इज रिलेटेड टू, मतलब ये जो पूरा बिल है ना, ये है दो चीजों के लिए। एक तो आपको जो फेक पेस्टिसाइड्स वगैरह जो मार्केट में आते हैं, ठीक है, उससे लॉस होता है, फार्मर को भी लॉस होता है एंड इकोनॉमी को भी लॉस होता है, इंडिया के इकोनॉमी को। तो उसको ही यहाँ पे बचाने के लिए, दैट इज फेक जो पेस्टिसाइड्स है वो मार्केट में नहीं आए, इसके चलते ये पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल लाया गया है, ठीक है। इससे इसमें क्या है, फाइन अराउंड 5 लाख रुपीस, जो कि अभी ये बिल है दैट इज नॉट फाइनल, ठीक है। तो अराउंड 5 लाख रुपीस का फाइन है अगर फेक फर्टिलाइजर कोई सेल करता है, या फिर 5 ईयर तक की जेल टर्म्स है उसको, ठीक है, याद रखेंगे इस पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल के अंदर। दिस इज जस्ट अ बिल ओनली, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान है इसमें कुछ कुछ, ठीक है। जो फेक फर्टिलाइजर जो मेन इश्यू है वो दैट इज स्प्यूरियस या फेक पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। अगर कोई सेल या परचेस करता है तो उससे पेनल्टी लगेगा, तो बेसिकली रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट इस बिल से, ठीक है, अगर ये पास हो जाता है तो ऑल दिस थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 केम इनटू फोर्स फ्रॉम व्हिच ईयर? 1968 जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है वो किस ईयर से फोर्स में आया? 71 ऋषभ, 71, 68, Vinit is saying D, 71, Himanshu is also saying D. Okay, so most of you are well aware of this, that 1968 में जो इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था वो 1971 से ही लागू हुआ था, came into force in the year only in the 1971, so you must remember this, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब पीएमबी बिल 2020 के बाद we will see about this ड्राफ्ट स्टेट बिल 2019 के बारे में, ठीक है। As per draft state bill 2019, which body will be responsible for its effective implementation? Seed bill 2019
which body will be responsible for its effective implementation? Varsha is saying Ministry of Agriculture. Ask is saying C. Sherlock is saying C. Pulkit is saying C. Shubham C. Navneet is saying C. Rohini C. Ministry of Agriculture, Anand. Himanshu is saying C. Saurav is saying also C. So most of you are saying C. Sandeep is saying Ministry of Agriculture. So a confusion seems to be there between your, that is option number A and option number C. तो याद रखिएगा जो ये ड्राफ्ट बिल है इसके हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी होगी फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इज ऑप्शन नंबर सी ओनली, दैट इज सेंट्रल सीट कमेटी की बात कही गई है इस पूरे ठीक है बिल में. तो सेंट्रल सीट कमेटी विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इन द एंटायर कंट्री. तो सी इज द राइट आंसर. Okay. Next question. As per draft State Bill 2019, which of the following is correct with respect to truthfully labeled seeds? Yeah, central government will form that committee, right? Question number 6. As per draft State Bill 2019, which of the following is correct with respect to TL seeds? Truthfully labeled seeds को हम TL seeds भी बोलते हैं. चलो इसके आंसर देने से पहले बताओ इसका टैग कलर क्या होगा. ट्रूथफुली लेबल्ड सीड का टैग कलर क्या होता है? एनीबॉडी प्लीज कमेंट व्हाट इज द टैग कलर फॉर ट्रूथफुली लेबल्ड सीड्स. टीएल सीड्स का क्या होता है? पुलकित इज सेइंग ओपल ग्रीन, ऑलिव ग्रीन. ओके, या राइट, इट्स ओपल ग्रीन, ऑलिव ग्रीन बोल सकते हैं. राइट, वेरी गुड. देन विल मूव ऑन टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या होगा? चलिए अब इसका आंसर बताइए. ए बी, इट्स कमिंग ए बी. Radha is saying B. Voluntary. Shubham, Himanshu is saying A. So mixed response from all of you between A and B. A and B, certification is voluntary and somebody is saying certification is compulsory. Navneet is saying B, compulsory. Navneet is saying, Saurav is saying B, compulsory. तो देखिए जो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होते हैं वो ऐसे सीड होते हैं जो ग्रो खुद करता है फार्मर. ठीक है, तो इस तरह के सीड से क्या हुआ है ना, टाइम पास सो फास्ट टुडे. तो इस तरह के सीड से क्या हुआ ना कि जो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड से हमारा जो पूरा सीड इंडस्ट्री है ना वो काफी ज्यादा डेवलप हुआ और फार्मर्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली पूरी इस चीज से. ठीक है, तो फार्मर्स को इतना ज्यादा हेल्प मिलने के बाद जो कमेटी यहाँ पे फॉर्म की गई थी इस बिल को प्रिपेयर करने के लिए, उन्हें बोला कि ट्रूथफुली लेबल्ड टीएल सीड से जब इतना ज्यादा हेल्प हुआ पूरे सीड इंडस्ट्री को, तो हम इसको ठीक है स्ट्रिक्ट वे में लागू नहीं करेंगे आगे. वी विल अप्लाई दिस इट एज इट वाज अर्लियर. जैसा पहले था वैसा ही चलेगा. दैट इज सर्टिफिकेशन विल बी वॉलंटरी. पहले भी फॉर टीएल सीड्स अर्लियर आल्सो द सर्टिफिकेशन वाज वॉलंटरी ओनली. सो एज पर दिस ड्राफ्ट बिल द गवर्नमेंट सेज दैट इट शुड कंटिन्यू लाइक दैट ओनली, दैट इट शुड बी सर्टिफिकेशन शुड बी वॉलंटरी नॉट कंपल्सरी. कंपल्सरी अगर कर देंगे तो पूरा का पूरा ये सिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है. क्वेश्चन नंबर 7. एज पर ड्राफ्ट स्टेट बिल 2019, which of the following is correct with respect to varieties developed by farmer? First, a farmer can sell seed without prescribed minimum limit of germination, physical purity. A farmer selling seeds need not to register for varieties developed by him. Vinit is saying E, neither. Rishabh is saying E, neither. Himanshu E, Govindraj D. देखो क्वेश्चन क्या है, you understand the question. The question is saying that see, if a farmer is growing seeds by himself only, ठीक है, a farmer can also produce seed, वो भी seed बना सकता है. If he is producing seed, then उस केस में क्या होगा कि कंपनीज तो रजिस्टर करती है, बट यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि फार्मर को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि जो सीड उसने प्रोड्यूस किया उसमें मिनिमम लिमिट ऑफ जर्मिनेशन, फिजिकल प्योरिटी क्या होगी. द नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट बोल रहा है कि उसको रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं है अगर वो सेल कर रहा है. तो इसके हिसाब से क्या होगा? आनंद इज सेइंग बी, रौनक बोथ. ओके, दोनों सही है. शुभम इज सेइंग डी, बोथ ए एंड बी. वर्षा इज सेइंग सी.
तो देखिए ड्राफ्ट सीड बिल में जो दिया गया है उसमें बताया गया है कि फार्मर को रजिस्टर कराने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक वो सीड को नहीं बेचता है। जिस दिन से वो बेचना स्टार्ट करता है देन ही हैज टू रजिस्टर। व्हेन ए फार्मर स्टार्ट सेलिंग हिज सीड देन ही नीड टू रजिस्टर फॉर दैट। बट व्हेन द थिंग इज अबाउट योर मिनिमम लिमिट ऑफ जर्मिनेशन, फिजिकल प्योरिटी, इसके बारे में ठीक है उसे प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे उसे एग्जम्पशन दिया गया है for point number A. So the right point here only is option B, that when he sells the seed then registration is must, but for point number A he has been given exemption. Question number 7, PDS comes under, PDS that is public distribution system, जो अभी काफी ज्यादा न्यूज में है गरीब कल्याण योजना के बाद, वो किस के अंदर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट, comes under a statute and none of these. Rishabh is saying D, Rahul is saying A, AK is saying B, Shubham is saying B, Shiva is saying state, Manoj is saying C. See, public distribution system थोड़ा सा आप समझोगे तो you can say the right answer. ये concurrent list होगा because state and center दोनों मिलके काम कर रही है। FCI तक procurement होता है but इसको state भी offtake करती है वहां से लेके और distribute करती है among the general public. So public distribution system comes under concurrent list because अगर ये यूनियन या सिर्फ स्टेट के अंदर होता तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एफिशिएंट नहीं हो पाता और चल ही नहीं पाता ये। तो इट इज कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, तभी दोनों मिलाके से साथ में चलाते हैं। The question number 9, the total annual requirement of grains to run the NFSA smoothly based on the last 3 years average. ये काफी ज्यादा न्यूज में था अभी। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है? अभी हम लास्ट पास्ट 3 इयर्स के एवरेज को अगर देखें तो शिवांगी सी, हिमांशु सी, शिवाय सिंह सी, 55, 54, ओके सी 54 मिलियन टन सी है। अगर हम लास्ट 3 इयर्स के एवरेज को करें तो हमारा रिक्वायरमेंट हमें पता चल गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से हमें जितना भी ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, व्हाटएवर ग्रेन्स वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट, our requirement is in and around 54 million tons. Question number 10, the center revises the buffer stock norms for food grain every year. ठीक है, कितने साल में करता है? एवरी डैश ईयर ले लीजिए आप, इसे डैश समझ लिए वहां पे है, ठीक है। तो कितने साल में रिवाइज करने का नॉर्म है? बफर स्टॉक जो हम मेंटेन करते हैं, द बफर स्टॉक व्हिच वी आर मेंटेनिंग, इन एवरी हाउ मेनी इयर्स वी नीड टू रिवाइज इट, रिविजिट इट, so that we can find out the any errors or correction whatever may be done. Shubham is saying E, Prasad is saying C, Tanay is saying E, Rahul is saying E. Okay, 3 year, 5 year, so a confusion is between 3 year and 5 year. तो आप नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में आए चाहे नहीं आए, बट दिस इज अ वेरी नॉलेजेबल क्वेश्चन। तो द बफर स्टॉक्स नॉर्म्स आर रिविजिटेड एवरी 5 ईयर, ठीक है, एवरी 5 ईयर, हर एक 5 साल में से हम रिविजिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बफर स्टॉक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, बफर स्टॉक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। We are left with 4 minutes, please be fast. Rishabh is saying 67, Sherlock is saying 67, Cool Boss is saying 69. Yes, 69 is the right answer. Buffer stock norm was introduced after FCI was established in I think 1964. Then this buffer stock norms started in the year 1969. So 69 is the right answer. Question number 12, the last revision of buffer stock norm was done in the year. जो हमने लास्ट बफर स्टॉक नॉर्म को रिवाइज किया था, रिविजिट किया था, किस ईयर में किया था? B 2018, Prasad is saying B, Shubham is saying D, Prasad is saying 13 and 18. So a confusion is there between 13 and 18. तो जो लास्ट हमने जो रिवाइज किया था दैट इज आफ्टर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के टाइम किया था, तो 2013 में हमने ये किया था, ठीक है, 18 में होना था बट ये अभी तक रिविजिट नहीं हुआ, तो लास्ट रिवीजन हैज बीन डन इन द ईयर 2013 ओनली। तो 13 यहाँ पे राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, द टोटल प्रेजेंट बफर स्टॉक क्वांटिटी इज अराउंड, अभी जो हम बफर स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं वो इन एंड अराउंड कितना है अभी? फास्ट प्लीज गिव मी द आंसर। प्रसाद सी,
Himanshu is saying E, none. Vinith is saying C. Tanya is saying C. Okay. Navneet is, yes, the C is only the right answer. जो हमने बताया अभी कि 55 मिलियन टन, ठीक है, हमारा रिक्वायरमेंट है, अभी हमें पता चल गया, बट हमें पता है कि एवरी ईयर सम ग्रेन्स गेट रॉटेड, ओके, रॉटन हो जाते हैं, तो रॉटन तभी होंगे जब एक्स्ट्रा होंगे, तो 55 से जो होगा 55 से ऊपर ही होगा आंसर, राइट? सो द राइट आंसर फॉर दिस इज 61 मिलियन टन, ठीक है। और अगर अभी हम देखें, ठीक है, बफर स्टॉक की हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, बट अभी गरीब कल्याण योजना एंड ऑल अभी आने के बाद रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा है, तो आई थिंक इन अराउंड नाउ व्हाट इज इन द न्यूज इज अराउंड 75 मिलियन टन के आसपास अभी हमारा, ठीक है, स्टॉक है, रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व और बफर को मिला के। The Ministry of Food Processing Industries released the draft National Food Processing in Year. The Ministry of Food Processing Industries released the draft National Food Processing Policy in the year. Shiva, just read the newspaper. What is in the news? Read that only. Okay. ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इन सबको, तो मुझे लगा कि ये सारे इंपॉर्टेंस है, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस क्वेश्चंस। 18, so C 2019 is the right answer, ठीक है। ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी जो है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, ये 2019 में लाएगा। नेक्स्ट, द ड्राफ्ट फूड प्रोसेसिंग बिल एम्स टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर बाय 6-fold, 6 टाइम्स हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है बाय ईयर, कब तक? क्वेश्चन नंबर 15। प्रसाद is saying E, Varsha E, Kumer E, Pulkit is also saying E. So the right answer is E only, that is 2035 तक ही हमें, ठीक है, ऐसे बढ़ाना है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। So today's session was related to your bills, important bills जो भी अभी न्यूज में थे। I have discussed all the important questions related to these bills, and I don't think any question will be asked outside this. So whatever has been discussed today is more than enough for all the important bills related to agriculture which were in news in the past 1 and 2 months. Okay. So that's all, my dear friends, for today. Have a nice day तो नहीं बोलूंगा, चलो, good night everybody, good night. Okay, okay, bye.